اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطق خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بس میرے بھائیوں، لمبا مصائب نہیں پڑھنا، اور یہ دن کسی پڑھنے والے کا محتاج بھی نہیں ہے، بس مومن کے دل پہ کربلا لکھی ہوتی ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دن ایک بھائی سے منسوب ہے، ایک بہن سے منسوب ہے، ایک بھائی سے منسوب، ایک بہن سے منسوب، اور خلاصہ یہی ہے کہ 1950 زخم کھا کے بھائی گھوڑے سے اتر گیا ہے، اور پشت اور سر پہ نیزے کھا کے بہن کے سر سے چادر اتر گئی۔ جو مظلوم ہے، جو بھائی ہے، وہ ضعیفی کا مظلوم نہیں ہے، بچپن کا مظلوم ہے، بچپن کا مظلوم ہے۔ میں بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا مظلوم وہ جس کے بھائی کو زہر دے کے دنیا نے مارا، وہ جس کے بھائی کو میرا سلام ہو اس ذات پہ کہ جس کے بھائی کو زہر دے کے مارا، میرا سلام ہو اس مظلوم پہ اور جس کے باپ کے سر پہ ضربت دے کے شہید کیا، میرا سلام ہو اس مظلوم پہ جس کی ماں کے پہلو پہ دروازہ گرا کے شہید کیا، میرا سلام ہو اس مظلوم پہ جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، میرا سلام ہو اس مظلوم پہ کہ بہنیں دیکھ رہی تھی وہ ذبح ہو رہا تھا، میرا سلام ہو اس مظلوم پہ کہ جس کو بہتے ہوئے دریا پہ پیاسا شہید کیا گیا، میرا سلام ہو اس مظلوم پہ وہ جس کے جنازے سے سکینہ کو تماچے مار کے اٹھایا گیا ہے، او میرا سلام ہو اس مظلوم پہ کہ جس کے لاشے سے بہنوں کو نیزے مار کے اٹھایا گیا ہے۔ یہ ایک مظلوم اور مظلومہ سے منسوب دن ہے، اور بس عزادارو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ایک ظلم کربلا کی تاریخ میں جب بھی ظلم ہوا ہے، ایک وقت میں ایک ظلم ہوا ہے، مگر یہ وہ دن ہے کہ ایک وقت میں 2 ظلم ہوئے کہ ادھر بھائی کو ذبح کر رہے تھے، ادھر بھائی کا لاشا لٹ رہا تھا، ادھر زینب کی چادر لٹ رہی تھی، آواز آئی لوٹو تبرکات، آل رسول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو۔ بس عزادارو یہی وقت تھا، بس چند جملے کہنا چاہتا ہوں، یہی وقت تھا کہ دروازے پہ آ کے میرا مظلوم امام کہہ رہا تھا یا زینب و یا رقیہ و یا ام کلثوم و یا سکینہ علیکن من السلام، او میرا آخری سلام ہو۔ بس عزادارو علماء نے لکھا ہے کہ سخت ترین مصیبت اور سخت ترین مصائب ہے مولا کا ان بیبیوں سے ودا کرنا اور الوداعی سلام کرنا، اس لیے کہ پہلے بھی جوان گئے ہیں، لیکن جب اکبر گیا تھا نا تو بیبیوں نے بڑا گریہ کیا تھا، بڑی روئی تھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گئی تھیں۔ اکبر گیا ہے، قاسم تو موجود ہے، اور قاسم تو ہے، جب قاسم بھی چلا گیا پھر روئی تھی، پھر گریہ کیا،
मगर चुप कर गई थी, अभी तो अब्बास बाकी है, ओ हमारे पर्दों का मुहाफिज। बस अज़ादारों, फिर अब्बास भी चला गया और इन बीबियों का आखिरी सहारा आके कह रहा था, ओ मेरा आखिरी सलाम हो, ओ मेरा आखिरी सलाम हो। और कहने वालियां कह रही थी, मौला आप तो जा रहे हैं, अब हम हैं किसके सहारे? बस रुख फेर के कहा था, अल्लाह के सहारे। अब तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। और कह रहे थे, मौला ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ईतीनी बिसौबिन अतीक, कोई पुराना लिबास मिल सकता है? और कोई पुराना लिबास मिल सकता है? बस अज़ादारों, पुराना लिबास आया और बहन के दिल पे क्या गुजरी, जब भाई ने पुराने लिबास को पारा पारा करना शुरू किया और ज़ैनब समझ गई कि भाई लिबास नहीं मांग रहा, भाई कफन मांग रहा, ओ भाई कफन मांग रहा है। बस अज़ादारों, विदा किया है बीबियों से और उसके बाद इसरार इमामत मुंतकिल करने के लिए आए हैं मेरे बीमार इमाम के पास। खैमे में आए, गशी का आलम था। रिवायत कहती है कि अपने गोद में बीमार इमाम के सर को रखा और शफकत का हाथ फेरा है, शफकत से हाथ फेर के कह रहे थे, ओ मेरा लाल, अगर बाबा की आखिरी ज़ियारत करना चाहता है, खोल अपनी आंखों को और आखिरी दफ़ा ज़ियारत कर ले। अब जो आंखें खुली तो क्या देखा कि मौला के बदन पे, वो कहीं पे अकबर का लहू है, कहीं पे असगर का लहू है, और कहीं पे अब्बास का लहू है। पूछ रहे हैं अपने बाबा से, बाबा बाबा चचा अब्बास किधर चले गए, चचा अब्बास किधर चले गए, कासिम किधर चला गया? बस जिसका भी पूछा तो यही इरशाद फरमाया, कद को दिल अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गए। बस एक जवान है कि जिसका जब इमाम सज्जाद ने पूछा है तो आप नहीं कह सके कद को दिल। जब पूछा ना कि मेरा भाई अली अकबर किधर चला गया है, कहा मेरा लाल बस इतना जान ले, या तू बच गया है या मैं बच गया हूँ, या तू बच गया है और या मैं बच गया हूँ। बस अज़ादारों, चले हैं मौला सवार हो के। और हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि कसम बाखुदा, मैंने किसी शुजा की ऐसी शुजात नहीं देखी कि बेटे कत्ल हुए हों, भाई कत्ल हुए हों, वो प्यास की हालत में जैसी जंग हुसैन ने की है। और अहले मकातिल ने लिखा है कि करबला से पहले जब भी कोई पूछता था कि अरब का सबसे बड़ा शुजा कौन है, तो कहने वाले कहते थे अली इब्न अबी तालिब, वो अली सबसे बड़ा शुजा है। वो करबला के बाद और जब भी कोई पूछता था वो सबसे बड़ा शुजा, वो कहते थे हुसैन इब्ने अली, वो अली का लाल हुसैन। क्यों? इसलिए कि अली जब जंग करते थे पानी पी के जंग करते थे। अली जब जंग करते थे वो पर्दादार घरों में होती थी। और ये मेरा वो इमाम है, वो प्यासा जंग कर रहा है और जहन में है कि मैं जंग कर रहा हूँ, उधर मेरी बहनें खैमों में है। बस मैंने शहादत के दर्जे पे फायज होना है। आवाज़ आनी है लूटो और लूटो तबर्रुकात, अली और बतूल को कैदी बना के ले चलो, आले रसूल को। और मेरे भाइयों, ये बड़ा दर्द था। रवायात में ये मिलता है कि ये बड़ा दर्द है कि जब भाई के लाशें को लूट रहे हैं तो बहन का को भाई का एहसास है, और जब उधर खैमों की तरफ गए हैं तो भाई को बहन का एहसास था, जंग करते हुए भी एहसास था। और रिवायात कहती हैं कि जब बहन आई है ना अपने भाई के लाशे पर, तो आके कह रही थी आ अंता ही, मेरा भाई हुसैन तू है, आ अंता कुर्रत आईनी, ओ मेरी आंखों की ठंडक हुसैन तू है। अगर हुसैन तू है तो मेरा आखिरी सलाम कबूल कर। बाज़ अहले मकातिल ने लिखा है कि बीबी चलने से पहले एक और सवाल करती है, भाई जब मैंने भेजा था सर पे बड़ा अच्छा मामा था, जब मैंने भेजा था वो तेरे कंधे पे रदा थी, तेरा अमामा किधर चला गया, तेरी रदा किधर चली गई? और फिर पूछती है हुसैन बता तो सही, तेरे हाथ की उंगली कहाँ चली गई? जब घर से आया था वो तेरे हाथों की उंगलियां सलामत थी, उंगली किधर चली गई? कटे हुए गले से आवाज़ आई, ज़ैनब मुझे छोड़, तू
बता तेरे सर की चादर किधर चली गई, ओ तेरे सर की चादर वो किधर चली गई है। बस अज़ादारो, हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने जैसी जंग इस जवान की देखी है मैंने कायनात में किसी की नहीं देखी। हमला करते हैं, यूं हमला करते हैं। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि लगता यूं था कि कोई शेर है जो बकरियों पे हमला कर रहा है। 12-12 मील तक भागे हैं और इमाम उनको भगाने के बाद अपने मरकज़ पे वापस आते हैं कि आवाज़ आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलअक़ूद, ओ साहिबान ईमान अपने वादों को पूरा करो। बस ये निदा आनी थी, तलवार को म्यान में रख रहे थे और कह रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, तेरी कज़ा पे राज़ी हैं। बस अज़ादारो, रिवायत यही कहती है कि मौला हुसैन घोड़े पे सवार हैं और रिवायत कहती है कि किसी ने उतारा है घोड़े से मगर मोहब्बत से नहीं उतारा है, किसी ने नेज़े से उतारा है या तलवार से उतारा है। भागते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के बल हुसैन ज़मीन पे आया है। और अज़ादारों, मुझे वो मंज़र याद आ रहा है कि कायनात की रहमत सजदे की हालत में है और यही हुसैन रसूल की पुश्त पे सवार हुआ। और अज़ादारों, जब सवार हुआ है ना, रसूल को पता चला वो मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा नवासा मेरी पुश्त पे है। रिवायत में है कि 70 दफ़ा तस्बीह को बढ़ाया है मगर रसूल पसंद नहीं करते कि मैं सजदे की हालत में हूँ और हुसैन मेरी पुश्त से गुजर जाए। अज़ादार, मैं पूछता हूँ कि जब कोई सजदे वाला सजदा कर रहा होता है वो ज़मीन से कितना बुलंद होता है। रुकू की हालत नहीं थी, क़ियाम की हालत नहीं थी, सजदे में बंदा ज़मीन से मुत्तसिल होता है। बस इसी बात का रोना है। और जिसका सजदे की हालत में पुश्त से गिरना रसूल पसंद नहीं करते। वो भागते हुए घोड़े से और नेज़े के साथ दाएं रुखसार के बल बदबख्त उम्मत ने उतारा है। और रिवायत कहती है कि उतरे तो हैं, 2 कदम चलते हैं हुसैन फिर गिर जाते हैं, और 2 कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कमज़ोरी हो गई थी, नकाहत हो गई थी? नहीं, रिवायत कहती है कि ऐसी बात नहीं। ये 2 कदम चलते हैं, बदमाशों ने चारों तरफ से घेरा है, 2 कदम चलते हैं वो कोई नेज़ा मारता है गिर जाते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं वो कोई तीर मारता है गिर जाते हैं। बस अज़ादारों, मक्तल गाह में पहुँचे और रिवायत का ताबूत मेरे सामने है, बस 2 मिनट रुक जाएं। मैं यही कहता हूँ कि मक्तल गाह में पहुँचे हैं और आखिरी सजदा अदा करना शुरू किया। अर्श इलाही को हिलाने वाला वो बेगैरत चला है कुंद खंजर को लेके, इसलिए कि जानता है तेज हथियार नहीं लाया, इसलिए कि जानता है या भाई मुझे रोक सकता है या बेटे रोक सकते थे, वो वारिस मुझे पकड़ते, लेकिन क्यों? इसलिए कुंद खंजर लाया कि जो भाई रोक सकता था वो बाजू कटा के सो गया है, जो अकबर रोक सकता था वो सीने में बर्छी खा के सो गया है, इसका कोई वारिस नहीं जो मुझे रोके। बस रिवायत कहती है सजदा हो रहा था, खंजर चलना शुरू हो गया, 12 ज़रबें चली, 13वीं का हाथ उठ रहा था, आवाज आई अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला। मातमे हुसैन, मातमे मज़लूम, मातमे मज़लूम।